Everyone, now open page number 30 of the book. Breathing. Oxygen is needed by cells for aerobic cellular respiration, while carbon dioxide and water vapor are given out as water products. While oxygen and carbon dioxide diffuses in and out of plants through the stomata, human beings have respiratory systems to help us with the exchange of gases between the bodies and the surroundings. Okay, beta, when we are talking about breathing, okay, we all know that we breathe oxygen. We breathe in oxygen through respiratory systems. If we are talking about human beings, so through respiratory system help us to exchange the gases between the bodies and the environment. बेटा हमारे surroundings में या हमारे environment में जो भी gases होंगी, ठीक है, उससे जो है वो respiratory system के through क्या होगा बेटा, वो gas exchange करने में help out करता है. कौन? respiratory system. ओके अब बेटा सबको पता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती हैं बेटा, डिफ्यूज मतलब इनहेल इन होती हैं या आउट होती हैं प्लांट्स के अंदर स्टोमेटा के थ्रू. ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को बताया रिस्पायरेटरी सिस्टम ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है, जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं बेटा, हम गैसेस को एक्सचेंज कर सकते हैं. ऐसे ही अगर हम प्लांट्स की बात करें तो बेटा प्लांट्स जो है वो क्या करता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इन अपने प्लांट्स अपने डिफ्यूज इन करता है और डिफ्यूज आउट करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड. किस प्रोसेस के थ्रू बेटा? स्टोमेटा के. ठीक है, और बेटा आप सबको ये पता होना चाहिए कि जब भी एरोबिक सेलुलर रिस्पायरेशन है, ठीक है, तो एरोबिक सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन हमारे सेल्स के लिए क्या होता है, अहम होता है. ठीक है, लेकिन जबकि कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर वेपर जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं. इट मींस दैट दे आर नॉट यूजफुल फॉर अस, दे आर वेस्ट फॉर अस. ओके ओके द ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम. बेटा ये आपको ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम दिखाया गया है, जिसके थ्रू जब हम इनहेल करते हैं अपने नॉस्ट्रल्स के थ्रू और हम एक्सहेल कैसे करते हैं. ठीक है, this is a nostril, this is a trachea, windpipe. It means that through which when any gas is we inhale or we exhale, it used to clean that, and it's a bronchioles and alveoli, and this is a diaphragm. Beta, these are the body parts, these are the parts which are present in the human respiratory system. And lungs help us, these are the two lungs which help us to clean to inhale or to exhale the gases in our body. And this part, the white part, is called which links to lungs, is called bronchus, and the plural of bronchus is bronchi. Okay, we breathe all the time. The oxygen needed for respiration is taken into our bodies when we breathe in the surrounding air. The waste products of respiration, carbon dioxide and water, are removed from our bodies when we breathe out. Unlike respiration, breathing is a physical process. Beta, whenever we breathe out all the time, you know that in the daytime or in the night we used to breathe. Okay, we breathe all the time. If we do not breathe, what happens that we can die. Okay, we can die. And you all know, I told you right now that for respiration process, our body need oxygen. Okay, whenever we breathe in whenever we breathe in oxygen through our surroundings, so it means that we need oxygen to inhale, to breathe in. And the waste product of respiration, बेटा respiration का जो waste product होता है, जैसे ऑक्सीजन तो यूजफुल प्रोडक्ट होता है हमारे respiration के लिए, लेकिन वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो होता है बेटा कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर. ठीक है, अब ये क्या करते हैं बेटा, हम इसको ब्रीथ आउट कर देते हैं. व्हाट वी डू, वी ब्रीथ आउट दीज टू प्रोडक्ट्स.
एंड बेटा अनलाइक रिस्पायरेशन, ब्रीथिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस। बेटा रिस्पायरेशन की तरह ही ब्रीथिंग भी क्या होता है कि फिजिकल प्रोसेस होता है। ओके, इट टेक्स प्लेस इन आवर रिस्पायरेटरी सिस्टम। Animals such as mammals, birds, reptiles, and amphibians breathe through special organs called lungs. Fish breathe through gills, while insects breathe through the holes in their bodies called spiracles. Beta, when we are talking about animals, for example, mammal animals, birds, reptiles, or amphibians, they used to breathe through their lungs. बेटा उनके स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, हम उन्हें कहते हैं लंग्स। लंग्स के थ्रू क्या होते हैं कि एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ब्रीथ ब्रीथ इन या ब्रीथ आउट करते हैं, ठीक है। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फिश, so fish used to breathe through their gills. Okay, they have their gills and through which they can breathe in or breathe out the oxygen or carbon dioxide. But if we are talking about insects, so insects breathe through their holes in their bodies. बेटा इंसेक्ट्स के अंदर उनकी बॉडी में कुछ होल्स मौजूद होते हैं और जिसके थ्रू क्या होता है बेटा, वो अपनी बॉडीज के अंदर होल्स के थ्रू जो है वो ब्रीथ इन या ब्रीथ आउट कर सकते हैं। ऑल राइट beta, here in figure 2.3 they have shown you something. This is a lung picture and it has alveoli. एल्वोलाई जो बेटा इसके अंदर ये छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं एल्वोलाई, ठीक है, इसके अंदर लंग्स के पार्ट के अंदर ये होते हैं। और बेटा फिर जो है ये क्या करता है, एक्सहेल करता है एयर इसके थ्रू, क्लस्टर ऑफ एल्वोलाई। बेटा इसके अंदर जो इसकी आपको डायग्राम जो है शो करके दिखाई गई है कि करीब से ये कैसी लगती है, ठीक है। एल्वोलाई जो है उसकी पिक्चर को दिखाया गया है कि एक्सहेल एयर बेटा इसके ऊपर के थ्रू करती है और जब वो इनहेल का कहाँ करी होगी, जब वो अपने एल्वोलाई के अंदर जब कोई भी गैस जो है वो अपने अंदर इन कर रही होगी उससे हम कहेंगे इनहेल्ड एयर, ठीक है। वो एल्वोलाई के अंदर बात कर रहे हैं बेटा, ये लंग्स के अंदर की पिक्चर एल्वोलाई का बता रहे हैं, ठीक है बेटा। अब एल्वोलाई को देख लिया है जब, तो एल्वोलाई के बाद अब हम देखते हैं एल्वोलस। एल्वोलस बेटा एल्वोलस के आपको इस ई की पिक्चर दिखाई गई है, इसके ये जो एक पार्ट होता है एल्वोलाई, इसके इसके एक पिक्चर को हम जब देखते हैं बेटा तो इसका ये मतलब है कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बेटा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब जो जनरेट होता है ब्लड, मतलब जो पाइप्स होते हैं ब्लड की, ठीक है। अब बेटा ये जो इसके ये किससे फॉर्म हुआ वो होता है रेड ब्लड सेल्स से, और ये क्या होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बेटा इसके अंदर मतलब इन करते हैं ब्लड, ब्लड जो होगा इन होगा और इसके थ्रू क्या होगा, ब्लड ऑक्सीजनेट होगा। ऑक्सीजनेट मतलब इसके थ्रू जो है वो वेस्ट होगा। ऑल राइट students, till page number 30 we have done today's work, this lecture. I hope it's clear to you all.